A very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your social science teacher. So, children, today we all are going to continue this chapter number 2 from your book, Our Past 3, and the name of your chapter is From Trade to Territory. In our last class, we discussed about the war with Marathas. Okay, we have gone through how after the defeat in third battle of Panipat, how Anglo-Maratha wars happened and how finally East India Company put its annexed the territories of India. Okay, after three Anglo wars with Marathas. Okay, so now our today's topic is the claim to paramountcy. Okay, now what is the meaning of paramountcy? Paramountcy means supreme power. So it means supreme power. So now the claim to paramountcy, it is a policy by the East India Company. So it is clear from the above that we have gone through the uh, topic Tipu Sultan, Tiger of Mysore, and after that we have studied about war with Marathas. And now it is clear from these topics that from the early 19th century, the company pursued an aggressive policy of territorial expansion. Company was adopting that policy of टेरिटोरियल एक्सपेंशन. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने मैसूर को बंगाल को उन्होंने क्या किया, एनेक्स किया. आफ्टर दैट उन्होंने मैसूर को किया. आफ्टर दैट धीरे धीरे उड़ीसा के कुछ पार्ट को किया, यमुना के, आगरा का, महाराष्ट्र का. धीरे धीरे करके क्या कर रही थी, कंपनी वाज एक्सपेंडिंग इट्स territory. Okay, so now under early 19th century, a new policy of paramountcy initiated by Governor General Lord Hastings. ठीक है, this is not Warren Hastings, under the Governor General Lord Hastings. ठीक है, Lord Hastings, Warren Hastings जो 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल रहे हैं इंडिया के. ठीक है, उन्होंने एक पॉलिसी को इनिशिएट किया. दैट पॉलिसी इज नोन एज the claim to paramountcy. Paramountcy means supreme power. Okay, now the company claimed that its authority was paramount or supreme, hence its power was greater than that of Indian states. अब क्या बोल रही थी कंपनी की, हमारी जो पावर है, ठीक है, सबसे सुपीरियर है, सबसे पैरामाउंट है. पैरामाउंट मीन्स सुपीरियर. Okay, company was saying our power is now more superior than the Indian rulers, Indian states. ठीक है, उनकी पावर से भी कई ज्यादा पावर जो है वो हमारी है. So they initiated this policy, the claim of paramountcy, and the process in order to protect its interest, it was justified in annexing or threatening to annex any Indian kingdom. ठीक है, और अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए कंपनी क्या कर रही थी, और इंडियन रूलर्स को, जो अलग अलग इंडियन किंगडम्स थे जो अभी ब्रिटिशर्स के अंडर नहीं आए थे, उनको भी क्या कर रही थी, उनको डराने की कोशिश कर रही थी कि हमने मराठास के साथ वॉर किया एंड वी annexed their kingdom. ठीक है, हमने मैसूर के साथ किया, अभी annexed their kingdom. हमने बंगाल के साथ किया, हमने उनका भी किंगडम एनेक्स कर लिया. ठीक है, तो वो इंडियन किंगडम्स को डराने की कोशिश कर रहे थे और इवन डरा भी रहे थे. ठीक है, बट द प्रोसेस ऑफ पैरामाउंटेंसी वाज चैलेंजिंग टू. ये जो प्रोसेस था, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था कि कैसे ब्रिटिशर्स ने ये पॉलिसी लगा के टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर रहे थे. ठीक है, कि हम सुपीरियर हैं, उनसे लैंड ले रहे थे, बैटल लड़ रहे थे और उनकी टेरिटरी अपने अंडर ले रहे थे. तो ये जो प्रोसेस था पैरामाउंटेंसी का, सुपीरियर पावर का, ये भी चैलेंजिंग था, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था. For example, when the British tried to annex the small state of Kittur in Karnataka today, ठीक है, प्रेजेंट डे कर्नाटका में एक स्टेट है किटूर, एक प्लेस का नेम है किटूर. When Britishers tried to annex, जब कब्जा करने की, उस टेरिटरी को अपने अंडर लेने की, किटूर को अपने अंडर लेने की कोशिश कर रहे थे, then
The Rani Channamma took to arms and led an anti-British resistance movement. रानी चन्नम्मा जो किटूर की रानी थी, रानी चन्नम्मा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, उन्होंने एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट क्या कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कि we will not accept your authority and we have this ability कि हम अपने किटूर को क्या कर सकते हैं, हम अपने किटूर को बचा के रख सकते हैं, हम आपके अंडर नहीं आएंगे। तो रानी चन्नम्मा ने क्या कर दिया था, टुक टू आर्म्स मींस मिलिट्री मतलब कि आर्म्स वगैरह उठा लिए थे, वेपन्स वगैरह, बैटल वगैरह स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, और उन्होंने एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है ऑपोजिशन वैसे। ठीक है, तो वो एंटी ब्रिटिश हो गई थी, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में थी, और उन्होंने बोला था कि हम आपका रिफ्यूज, हम आपका जो ये पैरामाउंटेंसी है, हम ठीक है, हम आपकी अथॉरिटी को नहीं मानते हैं और हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, सो ये एक एग्जांपल था रानी चन्नम्मा। दिस इज द पिक्चर ऑफ रानी चन्नम्मा, पोर्ट्रेट ऑफ रानी चन्नम्मा, एंड दिस इज द स्टैच्यू ऑफ रानी। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ रानी चन्नम्मा जो किटूर डिस्ट्रिक्ट में आपका बना हुआ है। सो रानी चन्नम्मा वाज अरेस्टेड इन 1824। ठीक है, 1824 में जो रानी चन्नम्मा है उनको अरेस्ट हो चुकी थी, और 1829 में वो जेल में ही मर गई थी। ठीक है, उनको जेल में वो मर गई थी। बट रयाना अ पुअर चौकीदार ऑफ सांगोली इन किटूर कैरिड ऑन द रेसिस्टेंस। ठीक है, एक सांगोली एक छोटी सी जगह है किटूर में, वहां के एक चौकीदार रयाना नाम के एक चौकीदार थे, उन्होंने ये जो एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस था इसको क्या करके रखा था, एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट को उन्होंने लेड किया, कैरी किया इस रेजिस्टेंस को। ठीक है, एंड विद द पॉपुलर सपोर्ट ही डिस्ट्रॉयड मेनी ब्रिटिश कैंप्स एंड रिकॉर्ड। उनको लोग जो लोकलाइट्स थे उन्होंने काफी सपोर्ट किया रयाना को भी। ठीक है, एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट को उन्होंने सपोर्ट किया, एंड इस पॉपुलर सपोर्ट के साथ, लोकलाइट सपोर्ट के साथ, उन्होंने काफी कैंप्स जो थे ब्रिटिशर्स के, काफी कैंप्स और रिकॉर्ड्स उनके डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। बट ही वाज कॉट एंड हैंग्ड बाय द ब्रिटिश इन 1830। इन द ईयर 1830 रयाना को भी क्या कर दिया गया था, हैंग कर पकड़ लिया गया था, और उनको क्या है, उनको मार दिया गया था, उनको फांसी लगा दी गई थी। हैंग्ड बाय द ब्रिटिश इन 1830, हैंग्ड बाय द ब्रिटिश इन 1830। ओके, so class now. Okay, now so class, after this in the late 1830s the East India Company became worried about Russia. ठीक है, अब जो पैरामाउंटेंसी था, ये क्लेम टू पैरामाउंटेंसी भी काफी चैलेंजिंग रहा। ठीक है, कुछ इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स, कुछ इंडियन स्टेट्स थे, ठीक है, इंडियन प्रिंस और प्रिंसेस थे, उन्होंने उनको काफी रफ टाइम दिया ब्रिटिशर्स को। बट उसी के साथ में रशिया भी क्या कर रही थी 1830s में, अपने आप को वो अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर रही थी रशिया भी। तो अब रशिया से ना काफी परेशान थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भी इमेजिन कर रही थी कि रशिया क्या कर लेगी, इंडिया में एंटर कर लेगी, और अपना रशिया की आर्मी जो थी काफी बहुत बड़ी मिलिट्री थी। ठीक है, तो रशिया से ब्रिटिशर्स जो थे रशिया से काफी थ्रेट हुए थे, and they imagined that Russia might expand across Asia and enter India from the northwest। अब नॉर्थ वेस्ट से जो आपका जम्मू एंड कश्मीर, प्रेजेंट डे राजस्थान पंजाब का जो एरिया है उस साइड से, उस टाइम पे तो पाकिस्तान जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान है वो भी इंडिया का पार्ट था। तो उन्होंने सोचा ये लोग क्या कर देंगे, रशिया जो है एंट्री ले लेगी, एंटर कर जाएगी। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या किया, ब्रिटिशर्स नाउ वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट। अब ये थ्रेट था, ये टेंशन थी, तो उन्होंने क्या किया, नॉर्थ वेस्ट में भी वो कंट्रोल चाहती थी अपना, जम्मू एंड कश्मीर में, आपका सिंध में, यूपी में, पंजाब में। ठीक है, वो वहां पे भी अपना क्या चाहती थी, उस टाइम पे जो अफगानिस्तान था वहां पे, पाकिस्तान था वहां पे, वो अपना
एक कंट्रोल चाहती थी. So they fought a prolonged war with Afghanistan between 1832 and 1842 and established indirect company rule there. अफगानिस्तान के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, वहां पे वॉर लड़ लिया था. एक तो 1838 में उन्होंने वॉर किया था और एक 1842 में. ठीक है, कि रशिया को ये शो करने के लिए और भी दूसरी कंट्रीज को ये शो करने के लिए कि वी आर पावरफुल हियर एंड वी कैन फाइट एनी बैटल विद एनीबडी, राइट. सो ये थ्रेट जो है डेवलप करने के लिए, सॉरी एस्टैब्लिश करने के लिए क्या किया, अफगानिस्तान के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक लड़ाई लड़ी, बैटल की. ठीक है, एक 1832 में, एक 1842 में. एंड दे इनडायरेक्टली एस्टैब्लिश्ड कंपनीज रूल देयर, और इनडायरेक्टली उन्होंने कंपनी का रूल जो है वहां पे एस्टैब्लिश कर दिया था. फिर 1843 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर लिया, सिंध को भी टेक ओवर कर लिया था, सिंध. और नाउ 1839 में, ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह ऑफ पंजाब इन 1839, पंजाब वाज अनेक्स्ड इन 1849. व्हाट हैपेंड, पंजाब को भी एनेक्स करना चाहती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बट महाराजा रंजीत सिंह जब तक पंजाब में थे वहां पे उनको एनेक्स करना जो है इतना इजी नहीं था. सो जब उनकी डेथ हुई 1839 में, आफ्टर दैट पंजाब ने भी क्या है, पंजाब के साथ भी 2 वॉर हुए थे. ठीक है, सिख किंगडम के साथ 2 वॉर हुए एंड उसके बाद पंजाब को एनेक्स कर लिया गया था 1849 में. ठीक है, 2 सिख किंगडम्स के साथ 2 वॉर हुए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के. ओके, सो नाउ जस्ट लुक एट दिस इमेज हियर. ठीक है, यहाँ पे क्या है, महाराजा रंजीत सिंह जो है अपने किंगडम को, अपना जो कोर्ट है, ठीक है, उसको दे आर ही वाज होल्डिंग हिज कोर्ट, कि कैसे कोर्ट चला रहा है, जो भी बातचीत वगैरह करनी है या जो भी इम्पोर्टेंट उनका जो है डिस्कशन वगैरह है, वो सब डिस्कशन वहां पे हो रहा है, या he was holding his court. Now your second topic is the doctrine of lapse. Your next topic is the doctrine of lapse, and this is very important topic and very important. ये एक ऐसी पॉलिसी थी, एक फाइनल वेव बोल सकते हो, जिससे कि इंडियन टेरिटरी में मोस्टली जो एनेक्सेशन थी, ब्रिटिशर्स ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एनेक्स कर लिया था इंडियन टेरिटरीज को, ये फाइनली इस वाले डॉक्ट्राइन से, इस पॉलिसी से. So the doctrine of lapse, ठीक है, this was the policy devised by Lord Dalhousie. ठीक है, this is the picture of Lord Dalhousie. He was the Governor General from 1848 to 1856. ठीक है, और he devised this policy of doctrine of lapse. Now what is this doctrine of lapse? This doctrine declared that if an Indian ruler died without a male heir, his kingdom would lapse, that is become part of company territory. Now ये डॉक्ट्राइन, ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप है, ये जो पॉलिसी है, इसका मतलब क्या है? इट मींस, उन्होंने कहा था अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, कोई भी इंडियन रूलर, ठीक है, कोई भी इंडियन रूलर अपने वंश के बिना, अपने मेल एयर के बिना, मतलब उनका जो जैसे वंश चलता है ना, ठीक है, उनका सन होता है, पहले कोई पर्टिकुलर एक कोई रूलर है, वो एक किंगडम को संभालता है, उसके बाद उनका बेटा उस किंगडम को संभालता है. ठीक है, तो वो क्या होता है, एयर होता है ना, वंश होता है. ठीक है, तो उन्होंने कहा था अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्राइन कि अगर कोई भी इंडियन रूलर अपने मेल एयर के बिना अगर मर जाता है, तो वो किंगडम जो है लैप्स हो जाएगा, मतलब वो उस किंगडम की जो भी टेरिटरी है वो कंपनी की टेरिटरी हो जाएगी. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी ये था. ये जो फेमस जो झांसी की रानी जो थी, क्या होता था उस टाइम पे, अगर किसी रूलर का बेटा नहीं होता था तो वो अडॉप्ट कर लेते थे. झांसी की रानी ने भी क्या किया था, अडॉप्ट किया था, अपने बेटे को उन्होंने अडॉप्ट किया था. ठीक है, तो उस टाइम पे उनसे भी क्या है, उनसे भी ये डॉक्ट्राइन ऑफ पॉलिसी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को ही लगा के, ठीक है, इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही झांसी को कैप्चर कर लिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने. ठीक है, और इसी की वजह से आपका ये जो बैटल ऑफ 1850, द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 भी हुआ था. ठीक है, तो आई थिंक दिस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इज क्लियर टू यू, कि कोई भी इंडियन रूलर अगर किसी मेल एयर के बिना, किंगडम के बिना अगर वो
मर जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितना भी किंगडम है उनका, वो कंपनी की टेरिटरी के अंडर आ जाएगी। One kingdom after another was annexed simply by this doctrine. बहुत सारी एक के बाद एक किंगडम क्या है एनेक्स होते जा रहे थे। जैसे सतारा हो गया, संबलपुर हो गया, देखो सतारा इन द ईयर 1848, आफ्टर दैट संबलपुर इन द ईयर 1850, उदयपुर इन द ईयर 1852, नागपुर इन द ईयर 1853, झांसी इन द ईयर 1854, अवध इन द ईयर 1856। अवध को भी 1856 में क्या कर दिया गया था, एनेक्स कर दिया गया था। बट यहाँ पे अवध जो है एक एक्सेप्शन है। क्यों? उन्होंने अवध को इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है अवध को अपने अंदर इस पॉलिसी को फॉलो करते हुए अवध को उन्होंने अपना टेरिटरी नहीं बनाया था। एक्चुअली व्हाट दे सेड जब 1856 में अवध को कंपनी टुक ओवर कर रही थी, वो क्या कह रहे थे? दे सेड दे वर ऑब्लाइज्ड बाय ड्यूटी, कि हमें हायर अथॉरिटी से जो है ऑर्डर है, ब्रिटिश पार्लियामेंट से ऑर्डर है टू टेक ओवर अवध इन ऑर्डर टू फ्री द पीपल फ्रॉम द मिस गवर्नमेंट ऑफ द नवाब। जो अवध के नवाब है वो यहाँ की जनता को क्या कर रहे हैं? मिस गवर्नमेंट कर रहे हैं। आपका जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस का मेथड जो है बिल्कुल भी सही नहीं है, आप अच्छे से गवर्न नहीं कर रहे हो अपने स्टेट को। दैट्स वाई जो हायर ऑर्डर्स आए हैं, हमें अपनी ड्यूटी को फॉलो करना पड़ेगा, ऑब्लाइज करना पड़ेगा, और हमें बोला गया है कि अवध को फ्री करना है। ठीक है, तो अवध से क्या हुआ? अवध को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की वजह से नहीं, ये स्टेटमेंट देके क्या कर दिया गया था, अपने अंडर उन्होंने लैप्स कर लिया था। ठीक है, इन द ईयर 1856, एंड दिस वाज वन ऑफ द मेन रीजन जो आपका ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1856 हुआ था। ऑब्वियसली अवध के जो प्रिंस थे, रूलर्स थे, दे एनरेज्ड बाय द ह्यूमिलिएटिंग वे इन व्हिच द नवाब वाज डिपोज्ड। ठीक है, बहुत ज्यादा अवध के जो लोग थे उनको काफी बुरा लगा, उनको वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे कि उनको बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग सा लगा कि ब्रिटिशर ईस्ट इंडिया कंपनी तो हमें इल ट्रीट कर रही है, ह्यूमिलिएट कर रही है, मतलब अपना फायदा उठा रही है। तो अवध के जो नवाब थे प्लस उनके वहां के जो लोग थे, उन्होंने ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 में अपना बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया। ठीक है, और उन्होंने क्या किया था? उन्होंने सपोर्ट किया था Great Revolt of 1857. This Great Revolt of 1857, we will talk about this revolt later on in this book. Okay, first war था आपका इंडिया का अगेंस्ट ब्रिटिशर्स की। उनको बोला गया था कि इंडिया छोड़ के जाओ। ये फर्स्ट रिवॉल्ट माना जाता है, ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, जिसमें झांसी, अवध, नागपुर, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोगों ने, मंगल पांडे, उन्होंने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। Now expansion of British territorial power in India. Just look at these maps. These maps are already mentioned in your book also. ठीक है, just look at this map, figure 1, figure 14A. India 1797. This was the map of India 1797, इन द ईयर 1797। ये जितना भी आप येलो एरिया देख रहे हो ना, येलो वाला एरिया, वो सारा का सारा किसके अंडर था? ब्रिटिशर्स के अंडर था। ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया। ठीक है, और कुछ पार्ट्स आपके ये वाला मद्रास का एरिया, ये वाला एरिया, जितना भी आप येलो पार्ट देख रहे हो, ये सारा ब्रिटिश रूल के अंडर था। और बाकी जो रेड एरिया देख रहे हो, ये एरियाज नॉट अंडर द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के अंडर में ये एरियाज नहीं थे। ठीक है, देखो नेपाल भी उस टाइम पे इंडिया का पार्ट था, पाकिस्तान भी इंडिया का पार्ट था। अब नाउ 1840 इंडिया का मैप देखिए, जितना भी येलो पार्ट देख रहे हो वो किसका पार्ट है? वो ब्रिटिश एरियाज अंडर ब्रिटिश रूल। देखो कंपैरिजन, देखो ये उत्तर प्रदेश का कितना एरिया इन्होंने अपने अंडर ले लिया, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, फिर ये देखो महाराष्ट्र का कितना सारा एरिया ले लिया इन्होंने, मध्य प्रदेश का कितना सारा एरिया अपने अंडर ले लिया। साउथ इंडिया तो मोस्टली पूरा ही इनके अंडर आ गया था एक्सेप्ट मैसूर। ठीक है, मैसूर को छोड़ के मोस्टली सारा स्टेट जो है ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया था। ये ईस्टर्न कोस्ट मोस्टली पूरा इनके अंडर आ गया था, ब्रिटिश रूल के अंडर।
फिर इंडिया का मैप देखो 1857 में, ठीक है, जस्ट लुक एट द मैप ऑफ इंडिया 1857। मोस्टली एरियाज अंडर ब्रिटिश रूल, येलो पार्ट जितना है एरियाज अंडर ब्रिटिश रूल है, रेड वाला एरियाज नॉट अंडर ब्रिटिश रूल, ठीक है। राजस्थान का कुछ पार्ट रहता है, हैदराबाद, प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश का, झारखंड का कुछ एरिया, ठीक है, और मैसूर वाला कुछ एरिया, ठीक है, केरला का कुछ एरिया, ये जो ब्रिटिश रूल के अंडर नहीं थे, ठीक है। जम्मू कश्मीर, ये लेह लद्दाख वाला जो एरिया है, जम्मू कश्मीर का थोड़ा एरिया है, ये एरिया जो है वो कहाँ नहीं है, वो ब्रिटिशर्स के अंडर नहीं है। बाकी ऑलमोस्ट पूरा इंडिया जो है ब्रिटिशर्स के अंडर आ चुका था 1857 में। ओके, so class, this is all about today. Thank you so much for joining the class, and if you face any problem, do let me know. Go through the chapter, go through the topic, and if you face any problem, do let me know.